Good morning, students. Today we are going to start second part of democratic rights. This is the sixth chapter of class 9th political science. In this video we will discuss about rights in the Indian constitution. In the previous video we discussed about what are the rights, why do we need rights, and definition and meaning of rights, life without rights. So these topics were covered in the previous video. In this video we will cover the topic rights in the Indian constitution. First of all, I'll tell you there are six fundamental rights. Six fundamental rights in described in Indian constitution. What do you understand by rights and fundamental rights? Rights are the claims which are necessary for the development of human being, and these are the claims over the society, government and other people, etc. Fundamental means the basic rights which are very necessary for the development of human being. So without the fundamental rights, human being cannot be developed, and fundamental rights also are the responsibility of the government to provide for all the citizens of the country. Getting my point? So this is regarding fundamental rights. In Indian constitution, six fundamental rights have been described. For example, and these fundamental rights are given in part 3 of the constitution, article 12 to 35. Article 12 to 35. So these fundamental rights have been prescribed in Indian constitution in part 3, article 12 to 35, and these rights were taken from the constitution of USA constitution, because our constitution in 8th class you studied that our constitution is the mixture of various constitution. So we have taken fundamental rights from USA, fundamental duties from Russia, and parliamentary system from British constitution, the emergency provisions from German constitution, Weimar Republic constitution. So this is the mixture of various constitutions. In the same way, we have taken fundamental rights from the USA constitution. You have to remember this. And there are six fundamental rights. Which are the six fundamental rights? Number one, right to equality. Right to equality. This is in article 14 to 18. It is prescribed in article 14 to 18. Number two, right to freedom. Right to freedom. This fundamental right is described in article 19 to 22. Number three, right against exploitation. This right is given in article 23 to 24. Right number 4, right to freedom of religion. In detail we will discuss later. Article 25 to 28. Right number 5, cultural and educational right. Cultural and educational right. This is given in article 29 and 30. And sixth is constitutional, or we can say that right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. This is the sixth fundamental right, article 32, and this fundamental right has been described as the soul of Indian constitution, and it is the most important fundamental right because it protects all the fundamental rights. Without this, we cannot protect our fundamental rights, because according to this right to constitutional remedies, we can go to the court, to the judiciary, if our fundamental rights are violated. If these, out of these 5 rights have been
means violated by anybody, by the government, by the people, by institutions, so we can go to directly to the High Court as well as to the Supreme Court for the protection of our fundamental rights. According to Article 226 we can go to the High Court, and according to Article 32 we can go to the Supreme Court for the protection of our fundamental rights. So these things you have to remember. Article 14 to 32 basically fundamental rights are explained. What is in Article 12 and 13 and what is in Article 33, 34 and 35 we will discuss in this video later. So now we'll discuss these fundamental rights in detail one by one. Now we'll discuss about these fundamental rights given in the Indian Constitution in detail. सबसे पहला है right to equality. जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 14 से 18 तक ये पहला फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, और इसमें डिटेल से हम देखते हैं कि 14 टू 18 क्या क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 14 आपको याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये मैंने टाइटल इसलिए बना दिया इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब होता है कि ऑल द पीपल इन इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉज एंड लॉज आर इक्वल फॉर ऑल। मतलब किसी के लिए भी कानून जो है वो अलग नहीं होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर एक मजदूर आदमी है, सबके लिए इस देश के कानून बराबर होंगे। और यही हमारे आर्टिकल 14 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सब लोग इक्वल होंगे। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक तो क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम इनफैक्ट डिफरेंस नहीं मानते हैं, बिकॉज इट बेस्ड ऑन द एबिलिटीज एंड द कैपेसिटी ऑफ द पीपल, राइट। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 15 में, यानी कि यहां हमने बता दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड अदर बेसिस। किसी भी लैंग्वेज, कल्चर, रीजन, रिलीजन, किसी भी बेस पे, चाहे वो किसी भी तरह का डिफरेंस है, उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नो डिस्क्रिमिनेशन मींस नो पर्सन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, एनीथिंग। तो इसको आर्टिकल 15 में ये बताया गया नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 कंसिस्ट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। All the people will have the equal opportunity to earn their livelihood, right, to develop themselves। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस बेस पे कि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए वो इस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, या इस कास्ट से बिलोंग कर सकता है इसलिए इसको इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये एक किस तरह का हो गया डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है और सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर मौका मिलेगा टू मेंटेन द इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड टू मेंटेन ऑल काइंड्स ऑफ इक्वालिटीज इन द कंट्री। सो दिस इज रिटन इन आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 इज प्रेस्क्राइब्ड विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अब कास्टिज्म इज कंप्लीटली एबोलिश्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की अब कोई भी जो है जिसको हम जातिवाद कहते हैं या छुआछूत कहते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। सारे की सारी जो कास्टिज्म वो बराबर होंगी, कोई भी अनटचेबल नहीं है, राइट। जैसे आपने देखा पहले अनटचेबिलिटी होती थी इंडिया में, आज भी रिमोट एरियाज में आपको मिल जाएगी अनटचेबिलिटी। हम आगे इस चैप्टर में आके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पी साईनाथ, जिन्होंने इंडिया में जो है एक सर्वे किया और उसके बेस पे उन्होंने द हिंदू में कुछ आर्टिकल्स लिखी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिस इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट मींस अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या होते हैं? जो ब्रिटिश जमाने में आजादी से पहले लोगों को कुछ उपाधियां मिल जाती थी, राजा साहब, नवाब, इस तरह से बहुत सारी उपाधियां मिल जाती थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ड्यूरेशन में। लेकिन अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि हमें समानता लेके आनी है, इक्वालिटी मेंटेन करनी है, तो इस तरह के टाइटल्स खत्म कर दिए हैं। क्योंकि ये टाइटल्स क्या है कि समाज में इनइक्वालिटी पैदा करते हैं, समाज में असमानता फैलाते हैं कि ये तो राजा साहब हो गया, ये नवाब के खानदान से है, तो इस तरह की चीजें अब बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओनली जो अवार्ड्स होते हैं
उनको आप जरूर लगा सकते हैं, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इस तरह से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से वो तो लगा सकते हैं, लेकिन टाइटल्स जो है वो खत्म हो गए हैं। सो दिस इज द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। दिस इज द सेकंड फंडामेंटल राइट गिवन इन आर्टिकल 19 to 22। 19 से 22 आर्टिकल में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम। इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 19 की तरफ चलते हैं। 6 फ्रीडम्स रिगार्डिंग सर्टेन राइट्स। हमें कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, कुछ फ्रीडम्स मिली है, और ये इसमें 6 फ्रीडम दे रखे हैं इसमें आर्टिकल 19 में। कौन कौन सी फ्रीडम आपको ध्यान से सुनना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, 9th क्लास की बुक में है ये। सबसे पहले आपको पूरी कंट्री में कहीं भी रिसाइड करने का अधिकार है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कहीं भी जाके घूम सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है आपका दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के अगेंस्ट आप बोलते हो तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपने जो आइडियाज हैं, एक्सप्रेशन है, वो आप बिल्कुल, आपके पास फ्रीडम है। और इसके अलावा आप अपने ग्रुप बना सकते हो, अपनी यूनियन बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, और इसके अलावा आप पीसफुल मैनर में इकट्ठा हो सकते हो। तो इस तरह से कुल मिला के ये 6 फ्रीडम्स आपको आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग मिली हुई है। कौन कौन सी फ्रीडम है मैं आपको दोबारा से बताता हूं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस ऑफ द थॉट्स, जैसे आपको अपने राइट्स जो है, आपके पास राइट है कि आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। इसके बाद आपके पास राइट है, आप अपने एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तीसरा, पीसफुल मैनर में इकट्ठा हो सकते हैं। चौथा, आप पूरी कंट्री में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। पांचवा, कहीं प्रॉपर्टी आप गेन कर सकते हैं। और छठा, कोई भी प्रोफेशन आप शुरू कर सकते हैं पूरी कंट्री में। तो ये आपके पास स्पेशल जो है सर्टेन राइट्स हैं, जिसमें आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 20 में आते हैं। 19 आपको समझ में आ गई होगी, इसमें 6 फ्रीडम्स है। आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है या क्रिमिनल एक्टिविटी अटेम्प्ट की है इस कंडीशन में, और नहीं भी की है, तो अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय आपको ये अधिकार है जानने का कि व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। पुलिस आपको बताएगी, रीजन बताएगी कि आपको किस ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कन्विक्शन है। कन्विक्शन मतलब आप कन्विक्ट अगर बने तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। और ये कौन बताएगा आपको, आपका अधिकार है जानना, आपको पुलिस बताएगी जो आपको अरेस्ट कर रही है। और ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 21 में चलते हैं। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको बिना किसी कारण के बंदी नहीं बनाया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये पर्सनल लिबर्टी में आता है, पर्सनली आप फ्री हैं। इसके अलावा राइट टू लाइफ, इसका मतलब होता है आपको जीने का अधिकार है, यानी कि आपको कोई भी आपका ये जीने का अधिकार नहीं छीन सकता, अगर कुछ विशेष सर्टेन कंडीशंस को छोड़ दे। तो वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, वो अंडर लॉज होती हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉज होती हैं। जैसे कि किसी को फांसी देना, अगर उसने ऐसा ऑफेंस अटेम्प्ट किया है, तो कोई ऐसा क्राइम किया है तो उसको सजाए मौत दी जाती है या जेल में बंद किया जाता है, पर्सनल लिबर्टी छीन ली जाती है। लेकिन वो बिल्कुल जो कॉमन सिचुएशन है उनके अंदर ऐसा नहीं होगा। आपके पास ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, राइट टू लाइफ। और मैं आपको बता दूं इसकी एक और स्पेशलिटी है कि इस राइट को इमरजेंसी प्रोविजन में भी छीना नहीं जा सकता। जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय भी इस राइट को, बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है आपके जो है छीन लिए जाते हैं, वोलेट हो जाते हैं। जैसे 6 फ्रीडम्स आपकी वोलेट हो जाएंगी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 भी वोलेट हो जाता है, आर्टिकल 22 भी वोलेट हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 21 वोलेट नहीं होगा, यानी कि आपका जीने का अधिकार बना रहेगा, आपको बिना किसी कारण के मारा नहीं जा सकता। आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन, 2002 के अंदर इसको एक स्पेशल प्रोविजन और 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन यानी कि कंपलसरी एजुकेशन है, इसमें 6 to 14 इयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन का राइट मिला हुआ है, दैट इज द राइट टू एजुकेशन 21A। अब आते हैं आर्टिकल 22, इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके पास राइट है, सबसे पहले कंडीशन आप नोट करें,
ध्यान से कि जब भी कोई अरेस्ट होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उसको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने लाएगी और उस प्रूव करेगी कि भाई इसने क्राइम किया है या इसके ऊपर पूरा डाउट है, इसलिए इसको हमने अरेस्ट किया। और दूसरा, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास राइट है कि वो अपना लॉयर वो अपनी फैमिली को बताएगा और वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, ये उसका राइट है। तो दो स्पेशल राइट है आर्टिकल 22 में। पहला राइट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाएगा, जो आपको वहां पे प्रूव करना पड़ेगा पुलिस को कि भाई इसने क्राइम किया इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। और दूसरा ये आपको लॉयर से कंसल्ट करने का राइट है। तो इस तरह से आपका ये हो गया राइट टू फ्रीडम। ये सारे आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको याद करने हैं बढ़िया से, और इसलिए आपको याद भी रखना है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। अब चलते हैं थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 आपको याद रखना है क्या लिखा हुआ है इसमें। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक का मतलब होता है, ट्रैफिकिंग मतलब कि खरीदना बेचना लाना ले जाना। ह्यूमन बींग्स को खरीदना और बेचना इलीगल डिक्लेयर हो गया है। जो पहले स्लेव्स, जो स्लेवरी जो सिस्टम था, स्लेव डायनेस्टी जो ये सिस्टम था, उसमें तो लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। तो इसलिए इंडिया में ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग से बंद हो गया है। अब मानव तस्करी हिंदी में इसको कहते हैं, उसको पूरी तरह से उस पर बैन लगा दिया आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग, और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बाद है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या होता है, इसको हम बेगार प्रैक्टिस भी बोलते हैं। बेगार प्रैक्टिस। ये बेगार प्रैक्टिस क्या होती है, अकॉर्डिंग टू बेगार प्रैक्टिस और फोर्स्ड लेबर, पहले क्या होता था कि लोग जो है किसी जमींदार से, साहूकार से पैसे उधार लेते थे लेकिन वो दे नहीं पाते थे। तो उस कंडीशन में वो जो जमींदार थे या लैंडर थे वो क्या करते थे, उनको अपने खेतों में, अपने घरों में काम करवाने के लिए बाध्य करते थे, मजबूर करते थे। दे वर कंपेल्ड टू वर्क इन देयर फील्ड्स एंड देयर हाउसेज। और उस कंडीशन में उनको पैसे भी नहीं मिलते थे, तो वो कहते थे कि जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे तब तक आप यहीं पे फ्री में काम करोगे। तो ये होता है फोर्स्ड लेबर, किसी को बंधुआ बना के मजदूरी करवाना, बेगार प्रैक्टिस और फोर्स्ड लेबर इसको कहते हैं। तो ये अब दोनों चीजें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, दोनों बंद हो गई हैं। अब ये दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। अब आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर इज एबोलिश्ड। यानी कि पहले बच्चों से आपने देखा होगा चाय की दुकानों पे, होटल में बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, राइट। कभी आप भी रेस्टोरेंट में, किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे जहां पे छोटा बच्चा काम करता है, उसको बोलते हैं छोटू समोसा लेके आ, छोटू ग्रीन चटनी लेके आ, इस टाइप से होता है ना। तो जो छोटू काइंड्स ऑफ थिंग्स वर कंप्लीटली बैंड बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इज कंप्लीटली अबोलिश्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 24। तो 14 साल से अब ये जो फिक्स्ड एज है 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से नीचे के कोई भी बच्चे को कहीं भी काम पे नहीं लगाया जाएगा। पहले सिर्फ इतना था कि जो डेंजरस वर्क है वहां नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब ये पूरी तरह से बैन हो गया है। चाइल्ड लेबर इज कंप्लीटली एबोलिश्ड इन इंडिया। तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जब आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है वो आपके साथ किया जाता है या वो आपको करना पड़ता है, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है, और आपको सही आपका राइट नहीं मिलता है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। तो इन दोनों आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके पास है आर्टिकल 23 एंड 24। अब चलते हैं नेक्स्ट राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28, इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 25 to 28। धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाता है। इट मीन्स ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया are equal, considered equal and the people are completely free to adopt any religion। देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने का, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस यानी कि कोई भी आप एक्टिविटी उसके रिगार्डिंग रिचुअल प्रैक्टिसेस, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो आप कर सकते हैं, एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, और अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, प्रोपगेशन कर सकते हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स का मतलब होता है जो आपके रिलीजन से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको मैनेज करने का आपको, आपके पास अधिकार है। इसको हम कहते हैं फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। इसके बाद आता है आर्टिकल 27, लिखा हुआ है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी रिलीजन के लिए लगाया गया पैसा
उसके प्रोफेशन के लिए, उसके प्रैक्टिसिंग के लिए, प्रोपगेशन के लिए जो पैसा आप लगाते हैं वो टैक्स से बाहर होगा, यानी कि उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो रिलीजियस जो मनी होती है, एक टाइप से जो मंदिर में पैसा आता है, मस्जिद का पैसा होता है, जो भी, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आप अगर मंदिर बनाने में पैसा दे रहे हैं, किसी रिलीजियस ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं, तो आपका वो पैसा टैक्स के दायरे से बाहर होगा। तो ये होता है एक फायदा जो आर्टिकल 27 में रिलीजियस जो बेनिफिट हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में लिखा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री क्या होती है, जब व्हेन स्टेट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, जब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है, जब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो उसको हम सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। लेकिन इस तरह से गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वर्शिपिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो माइनॉरिटीज के होते हैं, जो हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे, तो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्शिपिंग का अधिकार होता है और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का राइट होता है, क्योंकि वे पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से जुड़ी होती है। जैसे जैन समाज के बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस चल रहे हैं, इसी तरह से हिंदूज के बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, इसी तरह से दूसरी कम्युनिटीज के चल रहे हैं। तो वो अपने अपनी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस में अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है कुछ टाइप की इंस्ट्रक्शन वो दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। सो दिस इज द आर्टिकल 28 एंड दिस वाज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फंडामेंटल राइट नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। This right is described in Article 29 to 30. 29 to 30. Article 29, it is written here protection of interest of minorities. ये minorities क्या होते हैं? किसी भी कंट्री में कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी है, चाहे वो लैंग्वेज कम्युनिटी है, कल्चरल कम्युनिटी है, इट मे बी इन मेजोरिटी और मे बी इन माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है कि बहुत कम संख्या में होना, और मेजोरिटी का मतलब होता है कि ज्यादा, मींस एग्जिस्टिंग इन मोर प्रोपोर्शन, तो ज्यादा संख्या में होना। तो माइनॉरिटी जो होता है जो कम संख्या में होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में सिख, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये माइनॉरिटी जो पीपल होते हैं, माना जाता है कि ये अपने राइट्स का अगर इक्वली प्रयोग करना चाहें तो हो सकता है इनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए स्पेशल राइट्स जो है दे दिए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट्स हैं, उनके कल्चर को और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज के भले के लिए जो भी काम है, जो भी चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो की जानी चाहिए और वो उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 29 ये प्रोविजन है वो डालता है। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स के मदरसे होते हैं, इसी टाइप से जैन और बुद्धिस्ट के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, क्रिश्चियंस के भी होते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राइट दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ताकि उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। तो ये था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 32। अब 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो आर्टिकल 31 कहां गई? राइट, आर्टिकल 31। मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो उस समय कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। और अब कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये 7th फंडामेंटल राइट कहां गया? ये 7th फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में। इसको कहा जाता था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये रिमूव कर दिया गया अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट। याद रखना, अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, और ये 1978 में
राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और आजकल ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 300A में है, आर्टिकल 300A में, जहां पे अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है बट नाउ इट इज द लीगल राइट, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज द लीगल राइट। क्लियर? एंड इट वाज रिमूव्ड इन 44th अमेंडमेंट 1978, आपको याद रखना है। तो अब जो है आर्टिकल 32 की बात करते हैं। B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा कहा है, द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा है? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट। अगर इसको हम हटा दें तो बाकी फंडामेंटल राइट आपके बेकार हैं। क्यों है? क्योंकि बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई भी आपके पास साधन नहीं बचेगा अगर हम इस राइट को हटा दें। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आप वॉयलेट होता है, कोई भी लोग या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आपके फंडामेंटल राइट को तोड़ते हैं, आपकी इक्वलिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा जो भी उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 5 रिट्स का जिक्र है। रिट्स होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है। हाई जो कोर्ट होता है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट है, ये अपने जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिट्स कहते हैं। और ये 5 टाइप की रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हैबीज कॉर्पस, हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, यानी कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को जो है किसी को भी फ्री करने के लिए बोल सकता है कि एक पर्सन का डिटेंशन है वो गलत किया गया है। अगर हायर कोर्ट को लगता है कि ये गलत किया गया है तो वो लोअर अथॉरिटी को ये आदेश दे सकता है कि इसको छोड़ दिया जाए। राइट? तो इस तरह से हैबीज कॉर्पस हो गया किसी भी पर्सन की आजादी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड। वीक कमांड मींस जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो लोअर अथॉरिटी को कमांड देता है, यानी कि आदेश देता है कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। राइट? तो ये पॉजिटिव में यूज होता है कुछ करने के लिए, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, लोअर अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है। प्रोहिबिशन में आता है कोई लोअर अथॉरिटी जो है वो अपनी ताकत का अगर गलत यूज करती है, जो ऐसा काम करती है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता, यानी कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उसको करती है, तो हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहता है? इसको कहता है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, यानी कि उस काम को करने से उसको रोक सकता है। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो भी लोअर अथॉरिटी कर रही है, हायर अथॉरिटी उसको कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको कह सकता है कि ये क्या कर रहे हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं स्टैट्यूटरी टू बी सर्टिफाइड, यानी कि जो भी काम होता है वो उसके द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसके बाद आते हैं क्वो वेरेंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इट मींस हायर अथॉरिटी कैन आस्क टू द लोअर अथॉरिटी और एनी पर्सन और एनी ऑफिस होल्डर कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये किस राइट से कर रहे हो, कौन से जुरिडिक्शन से कर रहे हो, वो उससे पूछ सकता है और इसी को हम कहते हैं क्वो वेरेंटो। तो ये 5 रिट्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर होती है इंस्ट्रक्शंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द 6 फंडामेंटल राइट्स इन दिस वीडियो, और इनको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, रिवाइज करना, और समझ में अगर नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो देखें। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। राइट? तब तक आप रिवाइज करते रहिए, स्टडी करते रहिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।